students, welcome back to our online classes. I hope you all are good. As you all know that due to this pandemic, we are not able to arrange offline classes. So again we are starting with online. Okay, so not wasting much time in introduction, we will start. We will start from where we ended. In case if you missed any of my previous video, then you can check it on my YouTube channel. You will get all the videos that we had read so far. In this class, we are going to learn properties of multiplication. So our first property is order property of multiplication. All of you know that there are already two topics property we had learned, that is property of addition and property of subtraction. Now it's time to multiplication. So here also first property is property of multiplication. What does this property says? Order property of multiplication says that if the order of two numbers is changed, the change in a multiplication sum, the product remains the same. That means अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और आप उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. आंसर विल रिमेन सेम. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज grouping property of multiplication. This property says that if the grouping of number in a multiplication sum is changed, the product remains the same. This property is also same as order property. Order property says if you change their order, then also their product remains same. And this property also says that if you change their groups and then multiply, like firstly there are three numbers 15, 10 and 12. Firstly they grouped 10 and 12 and after that they multiplied their answer with 15. So they got 1800. In this, firstly they grouped 15 and 10. Firstly they multiplied 15 into 10. Then whatever answer comes, they multiplied it with 12. So then also they got 1800. And their third group is firstly they grouped 15 into 12 and then multiplied it by 10. Then also its answer is 1800. So you can see that they grouped the numbers in three different ways but their answer remains same. Next is property of zero. This property says that if a number is multiplied by 0, the product is 0 only. इसका मतलब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. Property of 1. This property says that if you multiply a number by 1, the product is the number itself. इसका मतलब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? जो नंबर है वो का वो ही आएगा. जैसे 5 into 1 will give us 5. 555 into 1 will give us 555. Similarly, you can see that. Therefore, 1 is called the multiplicative identity. इसीलिए 1 को क्या बोला जाता है? Multiplicative identity property. Next is distributive property of multiplication. What does this property says? The product of the sum or difference of two numbers with the third number remains the same if the two numbers are multiplied separately by the third number and then added or subtracted. इसका मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट को पहले सम करो या उसका डिफरेंस करो टू नंबर्स का थर्ड नंबर के साथ में तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. इवन इफ द टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड सेपरेटली, चाहे वो दो नंबर्स आप फिर सेपरेटली मल्टीप्लाई करो और फिर थर्ड नंबर को उसमें क्या करो? ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. फर्स्टली इन्होंने क्या किया है? दो नंबर को ऐड किया है, उसके बाद उसमें तीसरा नंबर मल्टीप्लाई किया है. या फिर आप क्या करो?
पहले 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करो, बाद में दोनों को ऐड, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसमें भी पहले दोनों नंबर को माइनस किया है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 10 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों के आंसर को क्या कर दो, माइनस, तो भी अपना आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। Let's try to solve question related to the properties of multiplication. Come to page number 36, exercise 2.4. Our first question is fill in the blanks. In this blank, you have to apply the properties of multiplication and then fill the blanks. Our first is 37 into blank equals to 0. 37 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो property of 0, multiplication property of 0 says that any number multiplied by 0 always get 0. तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी इसका आंसर क्या आएगा, 0. 15 इंटू ब्लैंक इंटू 12 इक्वल्स टू 23 इंटू ब्लैंक इंटू 15. ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. आप किसी भी दो नंबर को ग्रुप करके थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ग्रुप का ऑर्डर चेंज करके उसमें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. तो 3 नंबर्स दिख रहे हैं अपन को, 15, 12 एंड 23. तो यहाँ पे कौन सा नंबर गायब है, 23 और यहाँ पे 12. 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर ऑलवेज गेट्स 0. ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 179 इंटू 855 इक्वल्स टू 855 इंटू 179. दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट व्हेन वी गेट नंबर इटसेल्फ. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 देन वी गेट नंबर इटसेल्फ. हियर ऑल्सो 12 इंटू 33 इंटू 22, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. तो कौन सा नंबर मिसिंग है, 12. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन एंड यूजिंग द लैटिक मेथड. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन डिजिट बाय यूजिंग लैटिक मेथड. लैटिक मेथड कौन सी होती है, let's have a look. So our first question is A, that is 3782 multiplied by 29. In this question we have to use लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, अपन को रोज एंड कॉलम्स ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो 1 2 3 4 अपन हमेशा इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे और राइट हैंड साइड वाले नंबर को रो में अरेंज करेंगे. तो कॉलम्स किसको बोलते हैं, जब भी इस तरह से अगर अपन लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उनको बोला जाता है कॉलम्स. तो अपन को कितने कॉलम बनाना है, 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 कॉलम्स बन गए. और रो बोलते हैं इनको, जब इस तरह से अपन हॉरिजॉन्टल वे में लाइंस ड्रॉ करते हैं उनको बोला जाता है रो. तो रो कितनी ड्रॉ करनी है, 1 2. तो 1 and 2. ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट. सबसे पहले क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं. तो कॉलम्स अपन ने ड्रॉ कर लिए. अब कॉलम्स में ये नंबर प्लेस कर दो, 3 7 8 और 2. आफ्टर दैट 2 और 9. तो 2 9. यहाँ पर मत 2 प्लेस कर देना, उससे एक डिजिट नीचे क्या करना. ओके, हमेशा रो की प्लेस कॉलम के एक नंबर नीचे से स्टार्ट करना. अब क्या करने हैं, इसमें अपन को डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं. तो डायगोनल्स हमेशा यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए और इन दोनों एंड्स को मिला दीजिए, 1. आफ्टर दैट इस एंड को किससे मिलेगा, इधर से.
इसको किससे मिलाओगे, इससे, इसको इससे और इसको इससे। इस तरह से फिर क्या बना दीजिए, डायगोनल्स ड्रॉ कर दीजिए। आप चाहो तो इनको थोड़ा बार भी ले सकते हो। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल दिस। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया कीजिए। ओके, तो सबसे पहले 2 को करेंगे 2 से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आता है, 4, तो 4 लिखा। अब यहाँ का स्पेस खाली रह गया। अगर 2 नंबर आते तो एक यहाँ और एक यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 आया है, तो अपन 4 के साथ क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0 लग जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 2 2 जा 4, तो 0 4, 2 8 जा 16, तो 16 का 1 यहाँ 6 यहाँ, 2 7 जा 14 का 4, 1 यहाँ 4 यहाँ, 2 3 जा 6, तो 6 के क्या लिखेंगे, 0 6, 9 2 जा 18, 1 इधर 8 इधर, 9 8 जा 64, 9 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, तो 7 इधर 2 इधर, 9 7 जा 63, 6 इधर 3 इधर, 9 3 जा 27, 2 इधर 7 इधर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन को क्या करना है, इनको ऐड करना है। जिस ब्लॉक में जो नंबर है उसी को ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इस ब्लॉक में ये एक ही नंबर है 8, तो इसको यहाँ पे इधर लिख दो 8। ओके, इस ब्लॉक में कितने नंबर है, ये यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक है पूरा, तो 4 2 1 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 + 1 + 4, और जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। इस ब्लॉक में कितने नंबर हैं, 3 7 6 0, 3 + 7 + 6 + 0, जो भी आएगा आंसर यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 7 6 4 1, 7 6 4 1, इनको ऐड करने पे जो भी आए यहाँ पे लिख देना। आफ्टर दैट 2 6 1, 2 6 1, और इनका आंसर यहाँ पे, और यहाँ पे तो कितना है, सिर्फ 0 ही है, तो इस 0 को यहाँ लिख दो। अब इनको ऐड करो, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आया, 7, 7 और 3 10, 10 + 6 16, 7 और 6 कितना हुआ, 7 8 9 10 11 12 13, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 + 4 15, सॉरी 13 14 15 16 17, 17 + 1 18, 2 और 6 कितना होता है, 8, 8 + 1 9। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो अब देखो क्या क्या नंबर आ गए, 8 7 16 18 9 और 0। तो 8 के अंदर कोई सिंगल डिजिट है, 7 सिंगल डिजिट, 16 में क्या है, 2 डिजिट है, तो 16 का ये जो 1 है इसको क्या करोगे आप, इधर कैरी दे दोगे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा फिर, 6 ओनली। ओके, जब यहाँ पे एक कैरी लग गया तो यहाँ पे कितना आया था, 18, तो 18 में 1 प्लस होके ये कितना हो गया, 19, 19 का यहाँ क्या लिखोगे, 9, और इसका जो 1 था वो भी इसको क्या करना, कैरी दे देना। अब यहाँ पे कितना आया था, 9, तो 9 में 1 ऐड हो गया, ये कितना हो गया, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 0, और यहाँ पे क्या लग जाएगी, 1 कैरी।
अब ये 0 था, 0 में 1 प्लस हो गया तो ये कितना हो गया 1। तो अब जब आप आपका आंसर लिखोगे तो किस तरह से स्टार्ट करोगे, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से लेफ्ट। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला आपने क्या नंबर आया है लिखेंगे यहाँ पे 3782 इंटू 29। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया, यहाँ से स्टार्ट करो 1, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, 6, 7, 8। तो अपना आंसर क्या हो गया 109678। तो इस तरह से आपको ये लैटिक मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी तो अपन ने समझा है इसीलिए ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है, फिर अपन डायरेक्टली यहीं से क्या करेंगे वो अपने लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन दैट इज C1। ओके, तो C इज 9027 एंड 406। इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को कॉलम्स और रो ड्रॉ करनी है। तो कॉलम्स कितने ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, 4 कॉलम्स 1 2 3 4, 4 कॉलम्स ड्रॉ हो गए। रो कितनी ड्रॉ करनी है 1 2 3। तो रो हमेशा कॉलम के एक नीचे से गिनना स्टार्ट करो 1 2 और 3। अब क्या करो, इनमें उनके नंबर्स लिख दो 9027 और यहाँ पे 406। इसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल्स ऐसे, आई होप आप सबको इतना समझ में आया। अब लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 28 का 2 इधर 8 इधर, 4 2 जा 8, 8 का 0 8। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 ऑलवेज गेट्स 0। 4 9 जा 36। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसीलिए सभी में 0 पहले ही लिख देते हैं। 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 6 इंटू 0 0, 6 9 जा 54। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो अब अपना फाइनल स्टेप क्या रहता है, प्लस करना। इस क्वेश्चन में अपन ने इस तरह से प्लस किया था और बाद में कैरी लगाई थी, तो अब अपन डायरेक्टली करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो इस ब्लॉक में कितने नंबर हैं, ओनली 1 नंबर, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 2। इस ब्लॉक में कितने नंबर दिख रहे हैं 3 नंबर्स, तो 2 + 4 6, 6 + 0 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। इस ब्लॉक में कितने नंबर दिख रहे हैं 0 1 0 0 8, इन सबको ऐड करने में कितना आएगा 9। इसमें 4 0 0 0 8 2, तो 4 और 8 कितना होता है 12, 12 + 2 14, 14 का लगा 4 और कैरी किधर लगेगी, इस ब्लॉक को ऐड किया है ना तो इसकी कैरी इसके पास वाले ब्लॉक पे लगेगी। समझ में आया। अब इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ 0 0 दिख रहा है और एक 5, तो 5 में 1 प्लस हुआ कितना हो गया ये 6। अब ये यहाँ पे 0 0 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और ये 3। तो इस तरह से ऐड करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से फिर ऐसे, ठीक है। तो 9027 इंटू 406 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 3664962। I hope you all understood this question. Let's start question number 3. Solve the following word problems. अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसमें फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है
A trip was organized for 6,287 peoples by the RWA during their winter holidays. Each person paid rupees 525 for it. How much money was collected altogether? मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन को एक का पता हो और ज़्यादा का फाइंड करना हो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की 6,287 पीपल्स के लिए विंटर हॉलीडेज की, उसमें से हर एक पर्सन ने 525 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है। तो टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है ये फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करोगे, इस तरह से। तो नंबर ऑफ पीपल्स 6,287 पेड बाय ईच मेंबर, हर एक मेंबर ने कितना पेड किया है, 525। मनी कलेक्टेड ऑल टुगेदर, एक का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आई होप यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई। इसमें अपन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किस तरह से करोगे, इस तरह से। तो 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी लगा 3, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31। एक बार मल्टीप्लाई खत्म, एक क्रॉस। 2 7 जा, अब यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओके। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना ताकि आपको जब ऐड करो तब कोई परेशानी ना हो। अब 2 बार मल्टीप्लाई खत्म, अभी एक बार और बाकी है, तो 2 क्रॉस। 5 7 जा 35 का 5 कैरी लगा 3, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31। लेट्स ऐड देम। 5 प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, 0। तो 5 प्लस 0 5, 3 और 4 7, 4 और 7 11, 11 प्लस 5 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 4 5 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 2 3 और 3। Therefore our answer is 33,675,000. You can see that 33,675,000 is our answer. So इस तरह से आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन शो करना है। B. A container can hold 37,827 liters of a liquid. If there are 125 such containers, how much liquid will be stored in them? तो एक का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। आई होप यू कैन डू दिस सम। In a factory, 37,629 items are produced every day. How many items will be produced in 1 year and 2 weeks? तो एक का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन आपको 1 ईयर 2 वीक्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेज में। तो ये किस तरह करोगे आप, इधर देखो। In a factory, items are produced every day equals to 37,629. 1 year 2 week, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, इन्होंने आपको हिंट में बताया है 365। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365
65 प्लस 2 वीक्स में कितने डेज होंगे, 1 वीक में 7, तो 2 में कितने हो गए 14, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 379, तो 1 ईयर 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं 379 डेज। टोटल आइटम प्रोड्यूस, तो इन दोनों को क्या करना है अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन, आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन में सिखा ही चुकी हूँ किस तरह से करना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।